that soluble base that soluble base element when which is dissolved in water that one is called alkali. Yes, water soluble bases are called alkali. ओके तो बेस आपके पास दो टाइप के हो गए. बेस एक जो वाटर सॉल्युबल है उसको आप एक अल्कली कह सकते हैं. ठीक है. मैम another one are simple base. They are basic and their solubility in water is very less. They are almost insoluble in the water. मैम एल्कलाइन इसका प्लूरल है क्या एल्कली का? नहीं वो भी उस पे हम पहुंचते हैं. अल्कलाइन का क्या मतलब है? Ma'am, which one is not dissolving in water? Just ma'am, simple soluble basic element. Ma'am, what is the name of that one? That they are called base. They are simply called base. They are not termed as alkali. Okay, next one is okay, cesium and francium. These two elements are liquid at room temperature. Okay. Lithium is a hard metal. Sodium, potassium are very soft and we can cut them with the help of knife also. So metals की कुछ properties होती हैं. They are generally hard, but we have two metals, sodium and potassium, which are very soft, and these can be cut with the help of knife. Okay, यहाँ पे एक question आता है बेटा, very important question. Sodium and potassium are stored under kerosene oil. Why? Ma'am, because it reacts with air vigorously. Because Because the it reacts ignition temperature is too low. Listen, raise your hand and I will ask. Harmanjot. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, because these metals are very reactive in nature, and ma'am, whenever they come in contact with the air, which has the water vapors, so they react readily to produce a huge reaction. So that is why we keep them in storage of kerosene, so that they do not come in contact with the air. Yes. In air, oxygen can also react with sodium metal, potassium metal. Not only this moisture is required, water के साथ भी इसकी बहुत ज़्यादा fast reaction होती है, oxygen के साथ भी इनकी बहुत ज़्यादा fast reaction होती है, and most important that reaction is highly exothermic, and even these metals catches fire. That's why we place them under the kerosene oil, because kerosene oil will cut the supply of the air to the metal. Okay. Next, my question is that we cannot store lithium in kerosene oil. Yes, Anuj? Yes, ma'am. One question, ma'am. That CS and F are found in liquid state. Yes. Repeat your question, beta. Okay, Anuj. ma'am. Repeat your question. Ma'am, you have rounded ma'am two elements that CS and F are ma'am. These both found in that liquid Yes, state. cesium and francium both are found in the liquid state at room temperature. Okay, yes, lithium, we cannot store lithium in the kerosene oil. Why? Yes, any other student? Yes, Harmanjot. Ma'am, can you please repeat Yes, the question? My question is, we cannot store lithium in the kerosene oil. Why? May I answer? Bhaskar, you tell beta. Ma'am, because I will take in the you last. Yes, Bhaskar. ma'am, because lithium is the lightest metal and it will float on the kerosene and it can react with the air. Yes, because lithium is very light element. आप देखिए बेटा, इसका जो atomic number है, that atomic number is 3 and its mass number is only 7. So it is very light metal. Okay, so its density is very less, so it starts to float. That's why we cannot store this in the kerosene oil. हम इसको kerosene oil में store नहीं करते. To store this, we use dense liquid ताकि वो उसके अंदर dip होकर के रहे. Okay. Now, next is this francium. This francium is a radioactive element. This is a radioactive element. Okay. Now, coming to the second period, a second group, the second group elements are called alkaline earth metals, and these are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium.
Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. These are second group elements. And in the mnemonics for these are beta, mange, car, scooter, बाप, रोए. बच्चे इसको बाप राजी बोलते हैं, मैं बाप रोए ही बोलती हूँ. बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए. ओके, तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं बेटा, these are called alkaline earth metals. Same beta, these also produce their oxides which are alkali, and these oxides are present in the earth crust. That's why these are called alkaline earth metal. क्योंकि आप इनको अर्थ क्रस्ट में से निकालोगे और इनके ऑक्साइड्स जो है वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं, and they are alkaline in nature, so these are called alkaline earth metals. Yes, Atharva. Ma'am, can you name the liquid in which lithium is kept? Lithium is kept in paraffin oil. Okay, ma'am. Ma'am, this all, ma'am, barium, magnesium, ma'am, that all alkaline earth metal, it is called as a radioactive element. No. This only francium is radioactive and radium is radioactive. This francium, element francium and radium, only these two are radioactive elements. But may you please repeat why these are called alkaline earth metals? Because their oxides are alkaline and found in the earth crust. That's why these are called alkaline earth metals. But what does alkaline actually means? Alkaline, actually alkali word is given to the soluble base. Any material which is basic in nature and dissolve in water, that is called alkali. So their oxides are alkali in nature, so they are alkaline. Okay, so alkaline जो oxides हैं, they are found in earth. That's why these are called alkaline earth metals. Ma'am, Okay. please repeat one more time the definition why alkaline earth metal is called. Because their oxides are alkaline in nature, alkali in nature, basic हैं, ठीक है, and these oxides are present in the earth crust. Okay, students. Now, calcium, strontium and barium. पहला पॉइंट तो ये बेटा कि जो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हार्डर मटेरियल. These all are solid. No element is present in the liquid state. And calcium, strontium and barium, these three elements show color. ये कलर शो करते हैं बेटा when we burn them in the flame. इनके एक सॉल्ट ले लो बेटा आप, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट ले लिया, बेरियम क्लोराइड ले लिया. when you burn them in the flame, directly flame में इनको burn करते हो, then they show specific color. Like in the case of calcium and strontium, there is red color. In this calcium, it will show crimson red color, this will show red color, and barium will show apple green color. At the time of Diwali, क्रैकर्स मिलते हैं, है ना, उनमें बड़े सुंदर सुंदर कलर आते हैं ना. तो इन फायरवर्क्स वी यूज दीज एलिमेंट्स टू बिकॉज दे विल शो कलर. जब आप उस फायरवर्क में इन एलिमेंट्स जो है ये बर्न होंगे तो वहां पे एक स्पेसिफिक आपको कलरफुल जो लाइटनिंग है वो दिखाई देती है. सो दीज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आर यूज्ड फॉर पर्टिकुलरली फायरवर्क्स और वी कैन से क्रैकर्स में इनको हम यूज करते हैं. ये स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am, Yes, beta. ma'am, can you explain again beryllium and magnesium? Beryllium and magnesium. What explanation you want for this? Ma'am, which you told that how it, ma'am, uses and. Nee, I have told the use of calcium, strontium, and barium. And ma'am, before that, ma'am, what you have told? Alkaline earth metal, calcium, strontium, barium, these show color when we burn these salts in the flame. Okay,
Calcium will show crimson red color, strontium will show red color, and barium will show apple green color. So we use them in the formation of crackers. Okay. Now I want to take example. आपको कुछ और बताना है ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए. लिथियम के सामने यहाँ पर था बेरिलियम बेटा, यहाँ पे है सोडियम एंड मैग्नीशियम. So just I want to write their configuration. So what is the configuration of lithium? Its atomic number is 3, 11, 4, 12. Yes, what is the configuration of lithium? 2,1. 2, 1. Means how many electrons in the outermost shell? 1. 1. And to which group it belongs? First. Group 1. First group. And the electronic configuration of sodium is? 1. Total electronic configuration is 1. 281. In again, it is having the 1 electron in the outermost shell. That's why these elements belong to first group. What is common between lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium? Can you tell what will be the? All of them have Their valence. valence electrons are 1. Yes, in all these elements, atomic number is different, their mass number is different, the total number of electrons are different, but they have one property same, that in all these elements, outermost shell contains only 1 electron. Okay? ये स्टूडेंट्स आपको मेरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम तो नहीं ना कोई? No, ma'am. No, ma'am. समझ आ जाता है? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. हाँ, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम बिकॉज यस बेटा हार्दिक. मैम मैं ये पूछ रहा था, आपने जो है लीना की ऐसा कुछ आप बता रहे थे इन दोनों का, हाँ. बताएंगे जरा. हाँ, लीना की रब से फरियाद. मैं हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं मैम, करती हूँ. second row का? आपको सेकंड का है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए. ओके मैम. Okay. So in the potassium also 2881. So why these are placed in group 1? Because they have 1 electron in their outermost shell. So what is the valency of alkali metals? 1. 1. Because 1. then मतलब outermost shell के जो electron हैं, they are called valence electron, and only these electron will take part in the bonding. And if there is only 1 electron, so it will form, its valency is 1 only. Okay. Now next point, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ बेटा Means- sodium. Excuse me, ma'am. Yes, Anuj. Ma'am, I want to ask that, ma'am, the element which have only one valency, then that one only is the alkali metal. No. Element which is having 1 valence electron, that is called alkali metal. That can be alkali metal, because if we have copper can also show +1. It also show 1 valency, but in the outermost shell of copper there is no 1 electron. So this is not alkali metal. Ma'am, yes, that only I am saying, ma'am, that in place of 1, if there is a 2 in outermost shell, then it will not be the alkali metal. Yes, it will not be an alkali metal. If in its neutral It atom, is if pure there for are everyone, 2 every metal. yes, if there are 2 electron in the neutral atom, outermost shell is containing 2 electrons in the outermost shell, that is not an alkali metal. Okay, now sodium is having 281. Okay, is this atom is stable? No, ma'am. No, this No, is ma'am. not No, stable. ma'am. So what is the condition for stability? It will have to lose 1 electron, and its outermost electron shell must have 8 electrons. Yes. Atom which is having 8 electrons in its outermost shell is stable, and each other elements or atoms which are not having 8 electrons in their outermost shell, they have the tendency to complete their octet. Okay. अब octet complete करना है तो इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके पास 2 ऑप्शंस है. How can it complete its octet? वो 2 ऑप्शंस क्या है? Ma'am, either by gaining 7 electrons or by Raise your losing hands 1. only, then I will ask. Yes.
रोजेन, Yes, ma'am. Ma'am, the condition is that either it can lose one electron or it can gain 7 electrons. yes, it can lose 1 electron or it can gain 7 electrons. So which is easier? Ritanjay, Ma'am, यस मैम। क्या इजी है? एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि 7 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है? मैम एक इलेक्ट्रॉन को लूज एक करना इलेक्ट्रॉन को काम निकालना है ना भाई। अब हमारे घर में 7 गेस्ट आ रहे हो और वो कहीं भी 7 हम लोग आ रहे हैं या फिर आप एक अकेले आ जाओ, क्या बेटर है? हम अकेले ही चले जाते हैं तो 7 गेस्ट को कौन संभाल लेगा, है ना? तो ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। निकाल के इसने क्या बना दिया बेटा? Na पॉजिटिव। नाउ एनटीएससी का क्वेश्चन आ गया कि सोडियम और Na पॉजिटिव में से विच वन इज मोर स्टेबल? Na positive. Na positive. Why Na positive is more stable? Raise your hands only. Yes, Anaisha. Ma'am, because it isn't stable because ma'am it has octet complete. Yes, its octet is complete and it is stable. Okay, but Na positive अकेला नहीं रह सकता। देखो हम भी कोई मार्केट से सामान लेने जाते हैं या हमें कुछ मम्मी ने पैसे दे दिए कि बेटा आज तुम फ्री पार्टी करो, तो हम पार्टी का मतलब ये तो नहीं ना सड़क पे पैसे फेंक के आ जाएंगे। तो सोडियम ने भी स्टेबल होना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बाहर नहीं फेंकता, किसी को देगा और जिसको देगा वो उस इलेक्ट्रॉन को लेगा। लेने से उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? नेगेटिव। तो जिसके साथ हमारा लेन देन होता है उसके साथ हमारी डेफिनेट कोई ना कोई बॉन्डिंग हो जाती है, तो यहाँ पर ये कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। सो ऐसे एलिमेंट्स जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, those elements are called. Aditi. Ma'am, can you repeat the question? My question is that elements which have the tendency to lose the electron and form positive ion, those elements are called. Yes, Ritanjay. मैम जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है उसे मैम कैटायन कहते हैं उसे और कैटायन, हाँ, नेगेटिव को करता है उसे एनायन कहते हैं। ओके। हरमनजोत। मैम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के लिए वन वर्ड क्या यूज करते हैं हम? Anaisha. Ma'am, cation. Okay, I think you all belong to 9th class, na? Ma'am, Aditi. electropositive are ma'am metals. हाँ, they are called metals. So these are the metals. अब आपको समझ में खुद ही आ जाना चाहिए कि metal आपने किसको कहना है, ठीक है? This is metal which have the tendency. Ma'am, please repeat that full statement. मैं अभी रिपीट करती हूँ बेटा, एक मिनट किया थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जो एलिमेंट पहले देखो प्रॉपरली हम चलते हैं। एलिमेंट है, एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है? मींस वो क्या चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है। तो जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है बेटा, उसके लिए बेटर क्या है? इलेक्ट्रॉन को निकालना। सो इट रिमूव द इलेक्ट्रॉन। Okay, after removal of electron, it form positive ion cation. Due to the formation of positive ion, these elements are electropositive. Electro मतलब charge, और कौन सा charge है बेटा? Positive. So these are called electropositive elements, and these electropositive elements are named as metals. इनको हम क्या कहते हैं बेटा? Metal कहते हैं, ठीक है? Yes, Simran. मैम अगर जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो 1 ना हो 4 हो तो मैम वो क्या? उस तक आती हूँ बेटा, अभी 1 से शुरू किया, मैं 2, 3, 4 पे पहुंचूंगी। 3 ज्यादा समझाने वाला नहीं है, 2 पे चलते हैं। यस, एनी अदर डाउट? 4 पे भी पहुंच रहे बेटा। मैम आई हैव अ डाउट। यस मैम मेरा डाउट ये है कि मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर ये जो अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो मैम वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2n² होता है, लेकिन हम लोग जब लिखते हैं तो उसमें से मैम ऑक्टेट्स क्यों बनाते हैं? उसमें हम क्या है बेटा, मुझे ऑक्टेट क्यों बनाते हैं? 8 आता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों चाहिए?
एक्चुअल में क्या है बेटा, जो ये एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं, ये सारे के सारे नेचर में प्रेजेंट है। हमने इनको सिर्फ स्टडी किया है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ओके, अब उनको स्टडी करके हमने कुछ कुछ रूल्स को बनाया। ठीक, तो अब आइडिया, ऑक्टेट वाला आइडिया जो है वो साइंटिस्ट के पास कैसे आया? एक तो यही देखा गया बेटा कि सोडियम ने, जब भी सोडियम Na की फॉर्म में आपको नेचर में कहीं नहीं मिलता, ये हमेशा अपने किसी कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है, वेदर इट इज सोडियम ऑक्साइड, वेदर इट इज सोडियम ऑक्साइड, वेदर इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द कंबाइंड फॉर्म, मींस कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा। ठीक, whenever it is found in the compound state it shows always +1 charge। +1 charge means इसने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, निकालने के बाद इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास सपोर्टिंग जो एलिमेंट है जो हमें बताता है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, वो है बेटा हमारी इनर्ट गैसेस, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। हीलियम में डुप्लेट कंप्लीट होता है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेडॉन। These are inert gases, and in all these inert gases outermost shell contain 8 electrons and these are non-reactive। जिसके ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर में उस शेल में, दोज आर नोबल गैसेस, ये रिएक्शन ही नहीं करती क्योंकि इनको जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास एक एविडेंस आता है बेटा, जिससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जितने हैं पहले वो अप्लाई कर दिया आपने, लगा दिए, लगाने के बाद एटम को पता है कि मैं अभी अनस्टेबल हूं, तो वो स्टेबल होने के लिए अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन निकालता है या लेता है। ओके ओके मैम, बट मैम अगर आउटर सेल में जो ऑक्टेट कंप्लीट होने से मैम कंप्लीट हो जाते हैं, यानी नोबल गैसेस बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल बन जाते हैं, बिल्कुल ठीक। तो मैम वो उन्हें बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, वो फॉर्मूला 2n²? नहीं, 2n² से तो बेटा आप शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, जो मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर निकाल रहे हो। किसी भी एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल हैं वो तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा। देखो, जब हमने आप कंफ्यूज पता है किस चीज में हो रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको फर्स्ट शेल KLMNO मैं लिखती हूँ अभी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? आपका जो डाउट है वो ये है, K में 2 इलेक्ट्रॉन है, अकॉर्डिंग टू 2n² हम लिखते हैं। तो इसमें कितने हैं बेटा 8, इसमें आएगा 18, इसमें आएगा 32 और हमारे पास ये नहीं है। ठीक, ये आता है आपके पास। अब आप यही कह रहे हो ना कि यहाँ पे 18 तो आपने कभी आज तक लिख के नहीं दिखाया हमें। दिस इज द कंफ्यूजन रितंजन। यस मैम। ओके, अब क्या होता है बेटा, देखो 2n² फॉर्मूला इज गिवन फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन इन द शेल। ओके, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बेटा एलिमेंट क्लोरीन का, विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 17, सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 287। क्लोरीन के बाद आता है आर्गन, दैट इज 18 and its configuration is 288. Now there is potassium which is 90. Now which shell is outermost shell? This is outermost shell. This is K shell. This is K shell, this is L shell, this is M shell. And this M shell is having 8 electrons, and according to the rule of filling of electrons, that outermost shell cannot have more than 8 electrons. So in potassium the electronic configuration is 2881. After that, अब देखो ये Ma'am, you are not audible to me. okay students, now you are getting my voice? Yes, ma'am. Yes. I think screen is not visible, na? Yes, ma'am. Not screen is coming. Just 1 second, beta. I am trying to. Yes, now it's visible. Yes. Yes, ma'am.
Okay. Excuse me, ma'am. Ma'am, that yes. ma'am, the atom which have eight electron in outermost shell it does not react with any other metal or other element. Ma'am, that one is called noble gas. That one is called noble gas. Ma'am, one statement I have written, ma'am, that one you already told, ma'am. Please check. The element which have tendency to lose one electron called electropositive element and electropositive element called cation. Electropositive elements are metals, not cation. Cation अलग चीज है बेटा, वो बाद में बताऊंगी. Element which is having the tendency to lose electron. It is not compulsory that it should lose one electron only. It can lose 2 electrons. It can lose 3 electrons also. वो 2 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकता है, 3 भी निकाल सकता है. बस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जिस भी एटम में है, that atom belongs to that atom is electropositive element and that is considered as metal. 118 जो elements हैं, they are divided into 3 categories: metals, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स. तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने मेटल किसको कहना है. ओके, नाउ कमिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन. आफ्टर दैट बेटा, दैट देयर इज स्कैंडियम व्हिच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 21. नाउ दिस KLMN, N shell is the outermost shell. Now M is not our outermost shell, and M shell can have maximum of 18 electrons. So the configuration of scandium is 2892. अब इलेक्ट्रॉन इसी में जाएगा बेटा, M shell में जाएगा and it will get 18 electrons. Then electron will enter into N shell. ठीक है बेटा, ऐसे करते करते जब मैं 30 पे पहुंचूंगी, दैट इज जिंक, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 28182. तो आपका जो एम शेल है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल थे उतने इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर कर चुके. जिंक के बाद आपके पास आता है बेटा गैलियम विच इज 31 और इसका कॉन्फ़िगरेशन है ये. अब समझ आ गया? Excuse me, ma'am. यस बेटा. स्कैंडियम में 289 कैसे आया मैम? बेटा देखो क्या हुआ, ये जो एम शेल था इसमें हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए बेटा? 8. ओके, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के बाद ये हमारा था आउटर मोस्ट शेल. इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एक रूल है कि इन दी आउटर मोस्ट शेल मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पॉसिबल. तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें होते नहीं है. ठीक है, तो हमने एक आउटर मोस्ट शेल एक नया बना लिया, एन शेल. एन शेल में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया. तो जब एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब दिस इज नाउ आवर आउटर मोस्ट शेल. बट ये जो एम शेल था इसकी कैपेसिटी कितनी है बेटा? 2n². अगर हम फार्मूला लगाएं तो 2 × 3 का स्क्वायर मीन्स 18. इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, बट आउटर मोस्ट शेल के कारण इसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकते थे. Now our outermost shell is this shell. So अंदर वाले शेल के लिए तो रूल नहीं है ना, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया. अब इसकी कैपेसिटी जितनी है उतनी उस तक फिल करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे. राइट? Yes, ma'am. Okay. Ma'am? Now, In yes, ma'am, that ASC, ma'am, the name of that ASC, ma'am, what is name of that element ASC you have written, which is 21 electron? scandium. Yes, ma'am. In that scandium, ma'am, I found that, ma'am, we are if we are arranging that scale, ma'am, in first, ma'am, ASPDF, ma'am, I am founding, ma'am, in after ma'am, in the third cell after arranging in P, we are directly going on 4s and then we are coming again in 3D. हाँ, तो सेम यही तो बताया बेटा, ये थर्ड शेल पे वापस आ रहे हैं बिकॉज नाउ दिस इज अवर आउटर मोस्ट शेल. एंड इन अंदर वाले शेल का तो रूल नहीं है ना कि उसमें इतने ही होने चाहिए. उसमें 18 की कैपेसिटी है तो अब फिल करोगे. ओके, एंड व्हाट यू आर आस्किंग, उसके लिए भी आपको मैं बता देती हूँ कि उसमें जहां पे हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं बेटा, उसमें क्या होता है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने लेना होता है. आपने अभी क्लास आपकी छोटी है बट आपने आगे तक का पढ़ लिया. तो 3D और 4s में से जो 4s है बेटा उसकी एनर्जी कम होती है.
तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में डालते हो, फिर उसके बाद आप 3d में इलेक्ट्रॉन डालते हो। बट इतने हाई फाई पे जाने की भी आपको जरूरत नहीं है बेटा, 11th में ही ये स्कैंडियम और ये 3d और 4s आपको समझ में आएगा। ओके बेटा, मेटल के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिली कि मेटल क्या है। मेटल वो है जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकालता है, ठीक। नाउ जब भी आपने मेटल को लिखना, यस बेटा। Ma'am, why hydrogen is not included in group 1? हाँ, हाइड्रोजन इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रुप 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये अगर आपको मतलब याद रखना है, मैं सबसे पहले याद कराती हूँ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। अभी हम क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे थे, तो देखो बेटा, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन आपको रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में मिलता है, ये बताइए। गैस। गैस, बिल्कुल, हाइड्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर। और मैं अभी आ रही थी उस पॉइंट पे, चलिए फिर भी अब हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं बेटा, H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। हाइड्रोजन में है क्या बेटा, एक छोटा सा न्यूक्लियस है सेंटर में, जिसमें एक प्रोटॉन है और एक ही शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। दिस इज स्मॉलेस्ट एटम। मैं तो कहती हूँ तो केमिस्ट्री का सबसे छोटा सा बच्चा, ठीक है, सबसे छोटा एटम है। इस इलेक्ट्रॉन को इसके न्यूक्लियस ने बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है। हाइड्रोजन अपने में से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालता, ये निकाल ही नहीं सकता। अगर आपको इसको निकालना है तो यू हैव टू गिव वेरी हाई एनर्जी, और उतनी हाई एनर्जी लेकर के सारा सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना। क्या हाइड्रोजन एक मेटल हुआ? No, ma'am. No, ma'am. No, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। मैंने इसीलिए आपको इसके साथ इंक्लूड करके नहीं पढ़ाया। बाकी सारे मेटल तो नॉट, कोई भी इन द 118 एलिमेंट्स, whichever is the metal that never exists as the gas, वो मेटल सॉलिड है या लिक्विड है, कोई भी मेटल गैस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली hydrogen is not having a certain position in the periodic table. Its position is uncertain. Some of its properties matches with alkali metal, and some of its property are similar to the halogen. तो इसलिए हम इसको किसी के साथ स्टडी नहीं करते। जब हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तो बेटा हाइड्रोजन को हम एक अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, नॉट इंक्लूडेड विद एस ब्लॉक, ये दिस वन alkali metals और विद halogens। किसी के साथ इसको नहीं पढ़ा जाता, ये बिल्कुल अलग है। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं सकता बेटा, ये अपना डुप्लेट कैसे पूरा करेगा, बताएगा कि Covalent By bond form gaining करके। one electron. raise hands and I will ask. ओके, वही हैंड्स होते हैं, बाकी सब कहाँ है क्लास में? आर्यन, अनायशा, Ma'am, it will gain one more electron to form its duplet. how will it gain? मतलब it, you want to say it will form H negative? But you said that it can't lose electron. लूज नहीं कर सकता। तो बेटा इतना छोटा सा घर है, उस छोटे से घर में एक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता, तो बेटा आएगा भी नहीं आ सकता, क्योंकि इतना छोटा घर है, इतनी टाइट जगह है, उसमें एक और रिश्तेदार आएगा तो रिलेटिव आएगा तो एडजस्ट कैसे होगा? क्योंकि जो दूसरा आने वाला है वो भी तो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। इट नेवर फॉर्म H नेगेटिव। H नेगेटिव भी नेवर की बात तो नहीं है, कहीं कहीं पे बनाएगा, कहीं कहीं पे H पॉजिटिव भी बनाता है, बट आप H नेगेटिव नहीं बनाना है। यस रोजेन? Yes, ma'am. Complete Form a covalent bond. यस, इट विल शेयर। ये क्या करेगा, शेयर करेगा, ठीक है। शेयर कैसे करता है? लाइक हाइड्रोजन है बेटा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में शेयर हो जाता है, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। ओके,
कोवलेंट बॉन्ड पे अभी आगे आएंगे, अभी हम मेटल्स पे थे। तो मेटल में देखो जैसे बेटा लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम। अब मुझे ये बताइए कि लिथियम का लिथियम के साथ कौन सा बॉन्ड है, या सोडियम का सोडियम के साथ कौन सा बॉन्ड है? हम मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। ओके, मेरा क्वेश्चन है बेटा, which type of bond is present between two sodium atoms? लाइक अगर मैं देखो अगर मैंने पोटेशियम हम मेटल covalent. लिया है ना, तो वो मेटल तो प्रेजेंट है, तो मेटल के साथ जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? मैम कोवेलेंट. कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक नहीं हो सकता? हो सकता है मैम। ओके, आयनिक भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है, फिर क्या करें? मैम Na और Na का, यस, Na और Na का बॉन्ड कौन सा मैम होगा उसका तो मैम कोवेलेंट ही होएगा, क्योंकि वो सेम के साथ ही कर रहा है शेयर। कोवेलेंट तब होता है, कोवेलेंट तब सॉरी मैम, आयोनिक तब होता है जब एटम एक लूज करता है एक एलिमेंट और दूसरा गेन करता है। गेन करता है, ठीक है। अब दोनों की नेचर तो लूज करने की है, तो दोनों ने पॉजिटिव बना दिया। दो पॉजिटिव तो कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये तो हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे, सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो इनमें आयनिक तो हो नहीं सकता है ना बेटा, क्योंकि ये दोनों मेटल हैं, बोथ हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, बोथ विल फॉर्म केटायन और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, सो दीस कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। खत्म हो गई हमारी बात। मैम can you explain the both मैम that covalent and ionic bond? आ रही बेटा, आ रही, उसी पे आ रही। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनेगा, ये समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आया बेटा, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। दूसरे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। शेयर कर लेते हैं। आप लोगों ने कहा कि मैडम शेयर करेगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग कैसे होगी? ये इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट किया, हमने दो इलेक्ट्रॉन। क्या सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? नो मैम। मैम आपने कहा था कि जो मैम कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं मैम, वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के साथ मैंने होते कहा हैं। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, आपको याद है। इसका मतलब मेटल का मेटल के साथ बॉन्ड ना तो आयनिक है ना ही कोवेलेंट है, देयर इज अ स्पेशल बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं बेटा? मेटालिक बॉन्ड। और जहां कहीं पे भी आपको मेटल दिखेगा ना बेटा, तो वहां पे आपको सोडियम को Na ही लिखना है, आपको पोटेशियम को K ही लिखना है, कैल्शियम को Ca ही लिखना है, जिंक को लाइक जैसे हाइड्रोजन है बेटा, उसको आप क्या लिखते हो? H2। क्लोरीन को आप क्या लिखते हो? Cl2। सल्फर को आप क्या लिखते हो? एसिड। वहां पे आप एटमिसिटी को चेंज करते हो, बट मेटल्स के केस में मैम P4. हाँ, P4, फास्फोरस इज P4। यहाँ पे ये अलग टाइप के एलिमेंट्स है बेटा, दीज आर नॉन मेटल्स, दीज फॉर्म मॉलिक्यूल, बट मेटल्स पे देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल, देयर इज मेटालिक बॉन्ड। और ये आपको ऐसे ही लिखने हैं बेटा, इनका एटम लिखते हो तब भी ऐसे लिखते हो, लार्ज क्वांटिटी में मेटल को लिख रहे हो तब भी इनका सिंपल यही रहेगा। ओके, यस मैम। यस, वेरी गुड। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एलिमेंट भी अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा, इट हैज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन तक बेटा निकल सकते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारे पास कार्बन। नाउ कार्बन बिलोंग्स, यस मैम, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटालिक बॉन्ड? इन दी मेटालिक बॉन्ड मैं आपको बता देती हूँ, एनटीएससी में काम आ सकता है इसलिए बता देती हूँ, अदरवाइज 9-10 तक मेटालिक बॉन्ड नहीं है। मेटालिक बॉन्ड एक्चुअल में बेटा बहुत लेटर डिस्कवर हुआ, सबसे पहले आयनिक, कोवलेंट, ये वाले बॉन्ड डिस्कवर हुए थे। मेटल्स के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है वो बहुत, और उसमें काफी एक जो मैं अभी बताऊंगी वो बहुत लोअर लेवल का कंसेप्ट है, उसके आगे बहुत सारे नए नए कंसेप्ट हैं। आपको लगेगा भी थोड़ा अजीब सा कि इस टाइप का कैसे बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो जैसे सोडियम है, ठीक है, यस, सोडियम जो है इसके आउटर बहुत सारे, जब आप देखो थोड़ी सी भी क्वांटिटी अगर आपके पास है तो दैट कंटेन्स टू मच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। सोडियम का हर एटम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और लूज करके वी गेट a sea of electrons that is called electron sea, ठीक है।
अब जब सोडियम ने अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो वो सारे के सारे सोडियम किस में कन्वर्ट हो गए बेटा, Na पॉजिटिव में। तो इनके बीच बीच में Na पॉजिटिव जो है वो प्रेजेंट है। दिस इज मेटालिक। इसीलिए जब आप सोडियम को लिख रहे हो तो आप उसमें सिंगल एटम नहीं है, इसीलिए सॉलिड है बेटा, क्योंकि खूब सारे एटम एक साथ प्रेजेंट। मेटल्स आर लस्टरस, पढ़ा है आप लोगों ने? यस मैम। Yes, ma'am. मेटल लस्टरस का मतलब क्या होता है? Ma'am, It has a, it shiny shows shiny. Shiny. You tell beta Harmanjot, what is the meaning of lustrous? Ma'am, it means they have a shine. They have a shine. Why they have a shine? Can you explain? शाइनी अपीयरेंस, ठीक है। शाइनी अपीयरेंस का मतलब इनमें से कुछ लाइट आ रही है ना, तो वो क्यों आ रही है बेटा? क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये रूम टेम्परेचर से एनर्जी को गेन करते हैं, गेन करके हाई लेवल पे जाते हैं, हाई लेवल पे। मैम सोडियम हैज 8 इलेक्ट्रॉन। मैम may I try रीजन इसका? यस यस हरमनजोत, ट्राई मैम बेटा। मुझे जैसे मैम अभी आपने बताया इलेक्ट्रॉन्स थी मैम, हाँ और मैम इनकी रैंडम मूवमेंट्स होती है मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम उससे इसीलिए मेरे ख्याल ये से malleable and ductile है, because of random movement of electron, these are malleable and ductile। आपने इसको हैमरिंग करी, इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गए, मेटल भी एडजस्ट हो गए, इसलिए ये malleable और ductile है। That's why these are, they show movement, that's why these are good conductor of electricity, है ना? ये तो Yes. आपको इसकी बहुत सारी मेटल की प्रॉपर्टी समझ में आएगी। यस हरमनजोत, कंटिन्यू। यस मैम। मैम तो उसकी वजह से शायद जो वाइब्रेशंस की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है उनके बीच में से, जिससे हाँ। हमें वो शाइनी दिखते हैं। क्या होता है बेटा, इसपे ये कुछ एनर्जी को गेन कर लेते हैं, एनर्जी को गेन करके ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब ये एक्साइटेड स्टेट में चले तो गए, बट एनर्जी गेन कर दी। एनर्जी गेन करने का मतलब दे आर हैविंग मोर एनर्जी, और ज्यादा एनर्जी का मतलब ये हो गए अनस्टेबल, तो ये वापस अपने लेवल पे आते हैं। जब वापस अपने लेवल पे आ रहा है तो जितनी एनर्जी ली थी उतनी निकालनी पड़ेगी, तो ये जब एनर्जी को निकालते हैं अपने में से, वही एनर्जी आपको दिखाई देती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो आपको वो शाइन करते हुए नजर आते हैं। Okay, yes, one of you was asking some question. Yes ma'am. Ma'am, why we have taken only 8 electron and 3 that sodium metal? 8 electron, where I have taken 8 electron? Ma'am, in that metallic bond of sodium. Because it becomes stable. In calcium it will lose 2 electrons because it is having out 2 electron in its outermost shell. Ma'am, we have taken 3 sodium elements. नहीं, वो तो यहाँ पे और लेने हैं बेटा, बहुत ज्यादा होते हैं, वो आपको और लेने हैं, मैं उस पॉइंट पे नहीं गई। Excuse me, ma'am. Yes बेटा, yes Means ma'am. that ma'am, electron will be only 8, but the sodium atom will be more than 8 or less than 8. It can नहीं be नहीं any. नहीं नहीं बेटा, ईच एंड जितने सोडियम के मैं Na पॉजिटिव बनाऊंगी बेटा, उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, बस। हर सोडियम अपने में से एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा बेटा, सोडियम इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैम ये तो यहाँ पे, यस बेटा। मैम हमेशा ये बॉन्ड बनाता है Na2 बनाता है K2 बनाता है, तो मैं Na3 K3 ये बॉन्ड भी बनती है या बस 2 तक ही रहता है? 2 होता ही नहीं बेटा, किसने वो टोल्ड यू कि Na2 बनता है या K2 बनता है? नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। नो मतलब कि सिर्फ Na2 जो अपने आप को स्टेबल करने का कोवलेंट बनाता है Na नहीं से Na। बनाता, नो बिल्कुल नहीं बनाता बेटा, यही तो समझा रही थी, Na और Na का बॉन्ड बनना ही नहीं है, दिस इज अनस्टेबल। ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट हुआ? देयर इज नो कोवलेंट बॉन्डिंग इन द सोडियम। Na2 डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सोडियम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं बेटा, इसलिए आपको यही समझा रही थी, कभी भी आपने किसी रिएक्शन में Na2 नहीं लिखना, हम इसको एग्जैक्टली Na ही लिखते हैं। मेटल्स, जो भी मेटल मिलेगा बेटा, उसके साथ में आपने 2 3 4 5 6 कुछ नहीं लगाना, उसको एज इट इज जो भी उसका सिंबल है वही लगा दो। Ma'am, that structure of that metallic bond of electron and that sodium, ma'am, please can you do fully? मतलब So that
for an example, we can I can write that one, that it is this transfer of metallic bond. नहीं बेटा, that much is not required for you बेटा. You are only in 9th class. That much elaborated form of metallic bond is not required. I just want to explain that there is metallic bond between the metals. Okay, because Okay, ma'am. you all are preparing for NTSC, some higher level is required. For that, I was telling you that in sodium or in metals there is metallic bond. एक दो बच्चों को याद भी है, मैंने बहुत अच्छे बताया भी था, और उसने अभी भी बताया कि मैडम आपने बताया था नॉन मेटल फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, मेटल एंड नॉन मेटल फॉर्म आयनिक बॉन्ड. ओके, तो मेटल एंड नॉन मेटल विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड, non-metal and non-metal will form covalent bond, and metal will form metallic bond. Okay. Yes, Aditi, do you have any doubt? Okay, No, now ma'am. carbon, coming to the carbon. So what is the configuration of carbon? 2,4. 2,4. Simran. मैम आपने नोबल गैसेस के बारे में बताया था मैम, उसमें आपने कहा कि उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे वो 8 ही रहते हैं मैम. बाय चांस अगर वो 8 ना रहे तो फिर मैम वो गैसेस के साथ क्या हो जाएगा? बाय चांस में 8 ना रही तो देखो बेटा क्या होता है कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जीनन है तो उसके हमने कंपाउंड बना लिए, मतलब उसके कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते बट बनाए हैं. इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है. जो इनर्ट गैसेस हैं बेटा दे एक्ट एज नॉन मेटल्स. गैस ही है ना सारे के सारे, तो ये नॉन मेटल्स ही होते हैं. नॉन मेटल्स में अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो दे विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ओनली, दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन. तो ये शेयर करके कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, बट ओनली जीनन ही करता है. उसके ऊपर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन कोई रिएक्ट नहीं करता. क्रिप्टन के ऊपर रिसर्च चल रही है कि वो कुछ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करे. ओके, तो कार्बन पे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड समझते हैं, फिर हम वहां तक चलेंगे. तो कार्बन इज हैविंग द 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. हाउ कैन इट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? या तो इट विल गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और इट विल लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना. ओनली देन इट विल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो आप देखिए बेटा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर 1 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है बेटा? इनको किसने रोका हुआ है? किसने यहाँ पे इसको जोड़ के रखा हुआ है इन इलेक्ट्रॉन्स को एटम के अंदर? मैम न्यूक्लियस के मैम आए. वेरी गुड, यस यस मुकुल. मैम न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो मैम ये जुड़े रहते हैं उसका. Very good. Because of the positive charge of the nucleus, the electrons are present in this atom, and we want to remove this 1 electron. Then what is required? अपने आप निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन? नो मैम. नो, क्या करना पड़ेगा हरमनजोत? मैम इसकी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ. मीन्स वी हैव टू गिव एनर्जी. यस मैम. हम इसको एनर्जी देंगे, है ना. अभी भी आप लोग जैसे पढ़ रहे हो, आपकी मम्मी आपको कह रही होगी खाना खा ले बेटा, बहुत टेस्टी खाना बनाया, तो आप क्लास छोड़ के जाओगे, अदरवाइज नहीं जाओगे, है ना. मम्मी लालच देगी तो बाहर चले जाओगे क्लास छोड़ के. अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है क्लास में तो आप नहीं जाओगे, है ना. बच्चों को आपने देखा होगा, बच्चों को उठा के ले जाने वाले भी तो यही करते हैं, टॉफी का, आइसक्रीम का लालच देते हैं, फिर वो निकलता है. इसको भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये बाहर निकलेगा. हमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकल गया. अब जिस घर में एक बार चोरी हो गई, क्या उस घर में से दूसरी बार चोरी करना आसान काम होगा? नो मैम. यस मैम. वेरी डिफिकल्ट. वो तो अपने घर में एक एक जगह पे लॉक लगा के रखेगा, हमेशा बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेगा. तो क्या कार्बन में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? चलो दूसरा निकल भी गया, तीसरे पे तो वो बिल्कुल ही केयरफुल हो जाएगा, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने क्या पॉसिबल है किसी एटम में से? नो मैम. नो, नॉट ओनली फ्रॉम कार्बन बेटा, किसी भी एटम में आप कभी भी
एनी एटम, जिसको मैं एक ए एटम ले लेती हूँ बेटा, इसका +4 आयन कभी नहीं बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, निकाल ही नहीं सकते आप। ठीक है, वो एटम कहेगा भैया इतने निकालने हैं तो चले जाओ, मैं नहीं दूंगा अपने इलेक्ट्रॉन इतने सारे, वो नहीं देता। ठीक है, जब उसने 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देने, 4 घर पे भी कैसे बुलाएगा? इसके पास तो बेचारे के पास 6 प्रोटॉन है ना। पहले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए तो इसके पास हो गए बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये 6 प्रोटॉन इतने सारे बच्चों को कैसे संभालेगा 10 इलेक्ट्रॉन्स को? ये इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इनको होल्ड कर सके। सो कार्बन विल नॉट फॉर्म C+4 और C-4 आयन। अब आयन नहीं बनना तो क्या आयनिक बॉन्ड बनेगा? No, ma'am. No, मैम ma'am. कोवेलेंट बॉन्ड। Yes. Ma'am, So covalent. to complete the octet, carbon share its 4 electrons. Like it is sharing its 4 electron with 4 hydrogen and forming a molecule which is called CH4. तो ये एलिमेंट्स के साथ साथ हम एलिमेंट से कंपाउंड की फॉर्मेशन को पढ़ रहे थे। ये स्टूडेंट्स टाइम आई थिंक ज्यादा ही हो गया, पता नहीं लगता, तो आज इतना ही करते हैं। वेडनेसडे को इसी को आगे कंटिन्यू करें। मैम carbon कोवेलेंट dioxide बॉन्ड में भी में ऐसे समझ ही नहीं होता है। आया। कोवेलेंट बॉन्ड से कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। वी विल हम स्टार्ट। कार्बन मैम then मैम can we have again discussion on covalent bond in next Yes, class? yes. From on Wednesday we will discuss start our discussion from the covalent bond only. Okay. ma'am, what is chemical name for CH4? That is called methane. Okay, ma'am. मैम Yes. मैम अगर हम लोग अगर किसी एटम में से प्रोटॉन को निकाल दें तो मैम क्या होगा? Atom will change. Like if I am having nitrogen, it is having 7 proton and I have removed 1 proton out of this, so it is having only 6 proton. It will convert to carbon atom. Excuse Ma'am, me, in which class we are going to? Excuse me, ma'am. Yes, beta. हम कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऐसे ही होता है शेयरिंग। बिल्कुल बिल्कुल शेयरिंग भी होती है। कार्बन नेवर फॉर्म आयनिक कंपाउंड, इट ऑलवेज फॉर्म कंपाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैम उसमें 2 ऑक्सीजन्स होते हैं। Yes, sharing. it is having 2 oxygen because बेटा देखो ये इनके hands है, hydrogen is having only 1 hand and but carbon is having 4 hands, so it will have to attach with 4 hydrogen, but carbon having 4 but oxygen is having 2 hands, Yes, ma'am. so there is formation of CO2. मैं मेरा कोई इस टॉपिक Yes, से students, only those students left in the meeting who are having some doubt, other can leave the meeting. Yes. मैं मेरा ये एक्स्ट्रा डाउट है टॉपिक से Yes. बाहर। Yes, एसिड के बारे में कि ऑर्गेनिक एसिड के मैम केमिकल फॉर्मूलाज बनते हैं। केमिकल फार्मूला बनते हैं? नहीं, मुझे बात नहीं समझ में आई बेटा, कैसे कह रहे हो? केमिकल फार्मूला का मतलब? जैसे विनेगर है हाँ, उसका हाँ. कोई केमिकल फॉर्मूला जैसे यस हाइड्रोक्लोरिक। यस 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 बिल्कुल है बेटा, ये है विनेगर का फार्मूला CH3COOH। एक्चुअली दिस इज CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। Vinegar is formed when we dissolve acetic acid into the water. That is only 3 to 4% acid. बाकी सारा पानी है विनेगर में। अच्छा मैम, ये वाटर और उसका विनेगर एसिटिक एसिड। Vinegar is the mixture of acetic acid and water. ओके मैम। And the formula of acetic acid is this and water is this. Ma'am, Okay, so is there different chemical name for vinegar and acetic acid? मैम ऑक्सैलिक एसिड, मैम टार्टरिक एसिड, मैम हाँ, they all are having different formulas बेटा। मैम Yes. बाय मैम, गुड डे, मैम गुड नाइट। Yes. हम लोग मैम मेरे वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी निकाल दे तो? हाँ तो निकाल दीजिए बेटा। प्रोटॉन एटम डिपेंड करेगा प्रोटॉन पे। ये आपने यहाँ पे होते हैं 7 न्यूट्रॉन, इसमें 7 न्यूट्रॉन है, सो इट विल फॉर्म आइसोटोप। ये कार्बन 13 आइसोटोप हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज कार्बन 12 होता है, ये कार्बन 13 हो जाएगा। दिस विल कंसीडर्ड एज द आइसोटोप ऑफ द कार्बन। Yes, ma'am.
मैम एलिमेंट Yes. नहीं चेंज होगा, आइसोटॉप बन जाएगा। यस, अगर न्यूट्रॉन ने चेंज करते हो आप तो उसका आइसोटोप बन जाएगा न्यूट्रॉन को चेंज करने से। अगर मैम न्यूट्रॉन को रखे तो न्यूट्रॉन को बस देखो बेटा, एटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज करने से यू विल गेट आइसोटोप। मैम यस, मैम which bond is मैम stronger मैम, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड? आप खुद सोचो, आपने दो चीजों को जोड़ा, एक रस्सी से जोड़ा और दो रस्सियों से जोड़ा, कौन ज्यादा अच्छे से जुड़ेगा? मैम डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, बिल्कुल ठीक। मैम बट मैम जब मैम मैंने क्लास में मैम से पूछा तो उन्होंने कहा कि सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, नहीं क्योंकि मैम देखो, वो ओवरलैप नहीं करेगा। नहीं ऐसा नहीं होता बेटा। देखो जो सिंगल बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ओके, जब डबल बॉन्ड होता है तो वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है एंड अदर वन इज पाई बॉन्ड। ओके, जो पाई बॉन्ड है दैट इज वीकर बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, राइट? तो अगर अब ये देखो बेटा, एक स्ट्रॉन्ग के साथ एक वीक और जुड़ गया तो एडम तो हुआ ही ना। डबल बॉन्ड अगर आप पूछोगे ना बेटा, तो डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, बट पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ओके मैम। Ma'am, nitrogen is having triple bond, ma'am. Yes, nitrogen is having triple bond. That's why it is inert. रूम में रिएक्शन करती है, इतनी N2 प्रेजेंट है, 78% आपके अंदर जाती है, बाहर आ जाती है, आप रेस्पिरेशन में यूज ही नहीं करते उसको, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है तो टूटता ही नहीं। Ma'am, the topic related to bond and all, in which class we are going to study that? Some of these topics will be continued in the 10th class and It will be maximum not in in 11th. कुछ टॉपिक तो Ma'am, this आपके bond is 10th more में। powerful. यस बेटा, प्रियांशी। Ma'am, which bond is more powerful, covalent bond or ionic bond? Ionic bond. Ma'am, is there, ma'am, one topic is that hydrocarbon and in which ma'am is saturated and unsaturated, is there alkane, alkene, alkyne, that topic, ma'am, in which class That it is in comes? the 10th class. That is in 10th class. Okay, ma'am. Okay, students. Now you can leave the meeting. मैम थैंक यू मैम। Yes. मैम एनटीएससी का इस 2021 में कोई मतलब सिलेबस है क्या मैम? नहीं, कभी एनटीएससी का कोई सिलेबस नहीं होता बेटा। दैट कवर्स ऑल द टॉपिक्स इन द 9th and 10th. ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू Thank you मैम। and then, ma'am. Good night, ma'am. गुड नाइट मैम। Good night, students. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Good night, ma'am. Good night, ma'am. Jai Hind, ma'am. Good night, ma'am. Good night, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.